All right, everybody. Welcome to the workshop and a very good morning to everyone. So, we are about to start the session. So, with that, I would like to welcome Coach Dipali Jain. Namaste, a very good afternoon to all of you, and welcome to the Art of Selling workshop. Today, I'm going to discuss 3 powerful secrets with all of you, along with my 25 years of journey in sales. I hope you are all going to have a great session. So, before I start the session, I request all of you to please come on the camera to have the maximum value from the workshop. Before I start, I would like to ask you 2 questions. First, how many of you feel sales is a passion driven profession? Raise your right hand. You feel it's a passion driven profession? And how many of you feel with this passion driven profession, we can generate good revenues with lots of tactics and good strategies? If you agree. And how many of you feel we can do both? With the passion, we can generate the revenue also. So before I proceed, I would like to pause for a second till the time people switch on their cameras so that they can have the maximum grabbing of the workshop. I request you all to please come on the camera. इट्स अ सेल्स वर्कशॉप और सेल्स के लोग जब तक आपस में एक दूसरे को फेस नहीं करते हैं वो सेल्स कैसे करेंगे बताइए. इट्स सो इम्पोर्टेंट. थैंक यू विनोद. Thank you, SRP Crane. It will be good if you can rename yourself. Thank you, Mukesh. Maitri, Kamlesh. Pradeep, Ansh, Sunil, I request you to please come on the camera. So today's intention of the workshop is how to generate revenue from this passion. हम लोग being in the sales or being in any profession, we always want to help people. हम लोग उनको किसी ना किसी तरह से मदद करना चाहते हैं और लेकिन साथ में अपना एक रेवेन्यू जनरेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और सेल्स के लोगों के लिए तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सबको हेल्प करते हुए हाउ टू जनरेट द इन्वेंशन एंड दैट इज वेयर द मोस्ट ऑफ द सेल्स पीपल आर स्टक. दे फील स्टक बिकॉज काम हेल्प तो हो रहा है लेकिन जो रिवेन्यू आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है. So this is the intention of the workshop today, to help you strategize your sales and to help you how to grow your sales. So I hope before I proceed, I gave you this template. Can you see this? This art of selling template, wherein you were supposed to keep it N of selling and K of selling with these 2 columns. If not ready, kindly ready this before we start on any A4 size paper. On the top right, write N of selling, and on the right hand side, write K of selling. N of selling क्या है, K of selling क्या है, I'll reveal you later on. This will be our template for today and template today for the sales pitch. Yeah. Jasmine, Ansh, Avinash, Zoom user, I request you, Mr. R.K. Verma, Sahu ji, please come on the camera. Great. Let's proceed. अगर मैं आपसे पूछूं, what is the intention to join today's workshop? That will help me to understand why exactly you have joined today. So in the chat box, can you write why you have, what is the one intention for which you have joined the class today? एक intention, एक कारण जिसके कारण आपने आज का ये workshop join करा है. Can you type in the chat box? ताकि मैं आपको बता सकूं whether this workshop is meant for you or not, or how is going to be helpful to you. वो एक इंटेंशन जिसके साथ हमने आज का वर्कशॉप ज्वाइन करा है. Growing ability. Thank you, Mukesh. Please type in the chat box the reason why you have joined today's workshop.
maximum scales, increase sales to enhance my selling skills. And more or less, it's going to be about sales today. I hope आप सबने इसी intention से join करा है, how to grow our sales, how to make our communication better, right? And most of your questions will be answered today. So before I proceed, let's take one more A4 size page and write down on that my art of selling. Take in the A4 size page, write down my art of selling and write down the date on the corner. ताकि पता चलेगा कि ये हमने सफर कब शुरू किया था और उसमें हमने एक्शन लेना कब शुरू करा है. Write down my art of selling and date, today's date. Date is very important. Let me talk to someone. हम लोगों में ना सेल्स के लिए पैशन तो हम सब में है, लेकिन उसको रेवेन्यू की तरफ ले जाने के लिए कई चीजें हैं, कई हिंड्रेंसेस हैं जो हमारे अंदर रहती हैं. वी ऑल आर बोर्न सेल्स स्टार्स. हाउ? बचपन में आप लोगों में से कितने लोग हैं जब पिकनिक के लिए स्कूल में बोला जाता था कि टुमारो इज अ पिकनिक, और घर आके पेरेंट्स को कन्विंस करना होता था. 2 दिन तक बाय गॉड इतनी स्ट्रैटेजीज बनती होंगी जितनी कभी लाइफ में नहीं बनी होंगी. हाउ मेनी ऑफ यू डन दैट? कोई स्कूल ट्रिप जाना था और पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए 2 दिन लगाया था और पूरी स्ट्रैटेजाइज करा था उसको. Ritul would like to share. Unmute yourself. हेलो. Yes, Ritul. मैम. मानती हूँ बचपन में जब मेरा ये फ्रेंड भी जा रहा है. अपने आप सेलिंग टिप्स आ जाती है ना कि पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करना है. आई एम ऑडिबल? Yes, you're audible. ओके. अब पहले से उसका प्लान बनता था, मतलब एकदम शांति से आके चुपचाप, कोई मस्ती नहीं. पेरेंट्स को लिखा था कि हम सिंसियर है काम में, होमवर्क कंप्लीट कर लिया, मेरा ये फ्रेंड भी जाने वाला है, मतलब कुछ ना कुछ एक्सक्यूज, मतलब ऐसे जो घर में खाने में बना होता था खा लेते थे, कोई नखरा हाँ. नहीं जब तक पिकनिक के लिए यस नहीं हो जाती. तो मानते हो वी ऑल आर बोर्न सेल्स स्टार्स. फ्रॉम चाइल्डहुड वी लर्न दिस टैक्टिक, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसे मिस कर जाते हैं. तो फॉर दैट राइट डाउन, पुट वन डॉट हेयर on this template. In the center of the paper, put one dot, passion to help. Write down passion to help. Can you see this? और जब ये पैशन टू हेल्प तो हमारे पास शुरू से ही होता है. पैशन टू हेल्प इन अ सेंस कि अपने लिए कैसे हेल्प करना है, लोगों को कैसे हेल्प करना है. हम सब एक दूसरे की हेल्प करने में लगे हुए हैं और अपना काम भी निकलवाना जानते हैं, राइट? तो दैट हेल्प्स अस टू बिकम एन एक्सपर्ट इन दैट. अब एक्सपर्ट हम किसको कहते हैं सेल्स में? व्हेन यू नो योर एरिया, व्हाट यू आर सपोज टू सेल, राइट? तो उसके बारे में क्या क्या स्ट्रैटेजीज होना चाहिए, क्या क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो सब हम लोग ध्यान देते हैं उस बात पे. जब कोई हम मार्केट में सामान बेचने जाते हैं तो वी हैव टू रेडी विद सम बेसिक नॉलेज ऑफ आवर प्रोडक्ट. अपने प्रोडक्ट की बेसिक नॉलेज हमारे पास होना चाहिए. और जब हम किसी पे अपना ट्रस्ट डेवलप कर लेते हैं, अब सेल्स के लोगों पे सपोज मुझे अगर मार्केट में घर में ही कोई भी बड़े होते हैं, अगर हमें कुछ सामान लेना होता है हम उनके पास जाते हैं फॉर द सजेशन, क्योंकि वो उस लाइन में एक एक्सपर्ट हैं. ऐसे ही अगर हमें कोई सामान लेना होता है तो हम किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं, या हमारे पास कोई आता है ट्रस्टिंग कि हम उन्हें एडवाइस कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं. हमारे पास जब कोई आता है वो ये ट्रस्ट लेकर आता है कि ये इंसान के पास जब मैं कुछ मांगने के लिए जाऊंगा या समझने के लिए जाऊंगा, दिस पर्सन इज गोइंग टू हेल्प मी. तो देयर फॉर दैट पर्सन वी आर एन एक्सपर्ट. इफ वी हैव अ पैशन टू हेल्प, वी बिकम एन एक्सपर्ट in the line. Draw one another line, dot, and write become an expert. You become an expert if you have a passion to help. अभी तक ये था कि लोगों को ये पता था कि यू कैन गाइड देम, यू आर एन एक्सपीरियंस पर्सन. लेकिन जब वो आपके पास आते हैं, आप उन्हें हेल्प करते हैं, उससे उनको कोई फायदा होता है, तो देन दे आर एबल टू ट्रस्ट यू एज एन एक्सपर्ट.
राइट? अब एक्सपर्ट तो बन गए, लेकिन इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप लोगों में से कितने लोग यहाँ पर सेल्स में हैं? रेज योर हैंड। रुतुल, मुकेश, अजय। लेट मी टॉक टू अजय. अजय, अनम्यूट योर सेल्फ. जी यस, नमस्कार मैम। आप सेल्स में हैं? जी मैम, मैं डीलिंग में हूँ। कितने टाइम से आप सेल्स में हैं? मैडम मेरे को 18 साल हो गए। और आपके हिसाब से कितने लोग आपको जानते हैं कि आप सेल्स में हैं? मेरे ऑफिस के और बाहर क्लाइंट्स टोटल में लोग, कितने लोगों का नेटवर्क है आपका अप्रोक्सीमेटली? 70 से 80 के बीच में जो मेरे को जानते हैं, जिनसे डेली मेरा 35 से 40 45 क्लाइंट्स का ये तो डेली। वो लोग हैं जो आपको जानते हैं कि आप सेल्स में हैं, राइट? इसके जी। अलावा आपका नेटवर्क कितना बड़ा है? फिर इनके जो आगे जो जिनसे मेरी 40 45 बंदों से डेली बात होती है, उनके आगे दो दो तीन तीन रेफरेंस के थ्रू जो आगे कोई म्यूचुअल फंड लगा हुआ उनका। अजय, आप ये चीज मानते हैं ना कि अगर हम सेल्स में हैं तो हमें नेटवर्किंग तो कम से कम 100 200 300 लोगों का रखना पड़ता है? बिल्कुल मैम। आपके घर के आसपास घर वाले भी, जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स भी हैं, वो अजय को एज अ सेल्स पर्सन जानते हैं? जी। तो ये तो हुआ कि अजय को वो जानते हैं कि अजय सेल्स में काम करते हैं, राइट? जी। तो अजय ने एक अवेयरनेस तो क्रिएट कर रखी है. द फर्स्ट स्टेप आफ्टर यू बिकम एन एक्सपर्ट इन सेल्स इज क्रिएटिंग अवेयरनेस. Write down another dot after the expert. Create awareness. और जब आप क्रिएट अवेयरनेस करते हैं ना, उसी के साथ लेफ्ट हैंड साइड में एक डॉट डालिए, माय क्लाइंट. अवेयरनेस हमने किसके लिए क्रिएट करनी है? माय क्लाइंट. हमारा क्लाइंट अभी यहाँ बैठा है. जी। अब हमारे क्लाइंट को कई बार होता है कि उसको पता है उसको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, हम उसको गाइड करते हैं. हमारी बिल्कुल। एक्सपर्टीज के कारण वो हमारे पास आता है. जी। थैंक यू अजय, यू कैन म्यूट योर सेल्फ. आई कम बैक टू यू. ओके। हमारी एक्सपर्टीज के कारण वो कस्टमर हमारे पास आता है, क्लाइंट हमारे पास आता है. लेकिन अब उस क्लाइंट को उसके अनलिव्ड गोल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? मुझे मार्केट में एक गाड़ी लेनी है. कार खरीदने के लिए मैं किसके पास जाऊंगी? या तो शोरूम पे जाऊंगी, या मैं आज की डेट में गूगल करूंगी, या अपने कुछ फ्रेंड से पूछूंगी. अब वो फ्रेंड्स मेरे कौन से होंगे जिनके पास मैं एडवाइस लेने जाऊंगी, जिनके बारे में मुझे आइडिया है, जिनको थोड़ा सा नॉलेज होगा, एक्सपर्टीज होगा अबाउट द कार्स, राइट? उनके पास जब मैं जाती हूँ तो आई एम गोइंग एज अ क्लाइंट. और मेरा अनलिव्ड गोल क्या है? कि आई शुड बाय द बेस्ट कार एज पर द प्राइस रेंज, माय प्राइस रेंज, राइट? तो जब मैंने अवेयरनेस एज एक्सपेक्ट क्रिएट करी है, तो क्या ऐसा कुछ है कि मैं उनके पास जब जाऊंगी, आई हैव बिल्ड माय ट्रस्ट. somebody else was also मुकेश, आप भी सेल्स में हैं? जी। कितने साल से सेल्स में हैं आप? आपको 20 मैम। 20 years. आप ये मानते हैं, जैसे अभी अजय ने बताया, कि अवेयरनेस हमने क्रिएट कर रखी है, जो लोग हमें एज अ सेल्स एक्सपर्ट जानते हैं? ऐसे जी कितने मैम। लोग होंगे आपके ब्रैकेट में, आपके कॉन्टैक्ट में, जो लोग आपको एज अ वन सेल्स एक्सपर्ट जानते हैं? कोई भी सेल्स की 1000 एडवाइस चाहिए वो आपके पास आएंगे. 1000 प्लस मैम। 1000 प्लस. 1000 में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि आप सेल्स के एक्सपर्ट हो? अगर सेल्स के बारे में कोई बात करनी है तो मुकेश इज द राइट पर्सन. 3 से 5 400 मैम। 400. अब 400 लोगों में से जितने लोगों को आपने आज तक बात करी है, जो जानते हैं आपको एज अ सेल्स एक्सपर्ट, आप ये बात मानते हो उनमें से जब आपने उनको एडवाइस दिया होगा, अप्रोक्सीमेटली 10 to 20% लोग ही कन्वर्ट हुए होंगे जिन्होंने आपसे सेल्स करा होगा, सामान लिया होगा, या आपके कहने जी। पर किसी से यस मैम। सामान लिया होगा? हाँ मैम, 25% के आसपास है। और क्या आप ये चीज मानते हो, जिन लोगों पे आपने वो ट्रस्ट, जिन लोगों ने आप पर वो ट्रस्ट करा, उन लोगों ने जो ऑलरेडी आपसे सामान ले चुके हैं, अब वो हम्म। दोबारा उसी सामान को लेने के लिए तो आपके पास नहीं आएंगे? आते हैं मैम। अगर वो आते हैं तो रीजन क्या है उसके पीछे? गुड एडवाइस एंड ट्रस्ट। ट्रस्ट. हमारी अवेयरनेस क्रिएट हो गई कि लोग इतना हमें जानते हैं कि हमने, वी आर एक्सपर्ट इन सेल्स, इतना अवेयरनेस हमने क्रिएट करा. उसके आगे जब हमें अपनी सेल्स को बढ़ाना है तो जी। उन लोगों में हम पर ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर सेल्स के रिलेटेड हमें कोई काम करना है या प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई काम करना है, इसकी जानकारी इस एक्सपर्ट को है और मैं इसके पास जाके ही अपना सोल्यूशन ले सकता हूँ.
तो आफ्टर यू क्रिएट एन बिल्कुल। अवेयरनेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट बिल्ड ट्रस्ट इन योर बायर. प्लीज मेक अनदर डॉट एंड राइट बिल्ड ट्रस्ट. ओके। हो गया? दिस इज क्रिएटेड, डन. तो दीज आर द फर्स्ट टू स्टेप्स. जब आप एक्सपर्ट बन जाते हो अपनी मार्केट में, अपने आप को एक्सपर्ट साबित करने के लिए, यू मस्ट हैव क्रिएट अवेयरनेस कि यस यू आर द सेल्स एक्सपर्ट, और किसी को सेल्स एडवाइस चाहिए पर्टिकुलर चीज के बारे में तो दे कैन कम टू यू. नाउ बिल्डिंग ट्रस्ट का मतलब हुआ कि उस लाइन में आप एक्सपर्ट है तो पीपल आर कमिंग एंड ट्रस्टिंग यू टू बाय द प्रोडक्ट. अब एज अ सेल्स एक्सपर्ट, मोस्ट ऑफ द लोग सोचते हैं कि इफ आई एम इन सेल्स आई कैन सेल एनीथिंग. इज इट द राइट अप्रोच? अगर मैं सेल्स में हूं, मैं कहूंगी कि मैं हर तरह का प्रोडक्ट हर किसी को बेच सकती हूँ. क्या ये सही अप्रोच है? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री एंड डिसएग्री? अग्री के लिए ये, डिसएग्री के लिए ये. क्योंकि उससे क्या होता है, वी विल बी टॉट थिंक कि हमें लोग कैसे लेंगे कि मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड, एक्सपर्ट ऑफ नन. जनरल एडवाइस के लिए तो आ जाएंगे, हम वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाएंगे उनके ऊपर जो एज अ सेल्स पर्सन हमें बिल्ड करना चाहिए. Before I proceed, I still request rest of the people to please come on the camera. क्योंकि सेल्स के बारे में जब हम बात करते हैं, हम यहाँ पर अगर बैठे हैं अपना 1 घंटा दे रहे हैं संडे को, तो प्लीज हैव अ मैक्सिमम लर्निंग. और कैमरा ऑफ से वो लर्निंग नहीं आएगा क्योंकि वो सब ऊपर से चला जाएगा. थैंक यू नीतू, थैंक यू राहुल, थैंक यू सुशील जी. I will take your questions the last and you have to come on the camera, Mr. Verma, if you want to ask any question. तो अभी हमारा लेट्स प्रोसीड अहेड. अभी हमारा अवेयरनेस क्रिएट हो गया है, ट्रस्ट बिल्ड हो गया है, लेकिन कस्टमर हमारे पास अभी भी सोच समझ के आ रहा है, डाउटफुल माइंड से आ रहे हैं. तो क्या वजह है? क्योंकि वी आर सेलिंग एनीबडी एवरीथिंग टू एवरीवन. सेल्स में हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम सबको सब कुछ बेचने लग जाते हैं. और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, सेल्स की लाइन में सबसे ज्यादा स्विच ओवर्स जॉब के इसलिए होते हैं क्योंकि हम लोग प्रॉफिट के चक्कर में अपनी लाइंस को शिफ्ट करने से बुरा नहीं मानते. बट माय डियर फ्रेंड्स, आज आप 1 साल ऑटोमोबाइल्स में हैं, 1 साल आप एक्सपोर्ट लाइन में हैं, 1 साल आप लॉजिस्टिक में चले गए, और 1 साल आप एफएमसीजी में चले गए. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको 5 साल का एक्सपीरियंस जरूर है, लेकिन अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जाएंगे, दे विल से कि प्रोडक्ट रिलेटेड एक्सपीरियंस आपको किस लाइन में है, आप उनके लिए कितने बेनिफिशियल हैं. तो देयर आर सेल्स पीपल गेट स्टक. आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए सेल वन थिंग एट अ टाइम एंड मास्टर योरसेल्फ इन दैट लाइन. मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा जो म्यूचुअल फंड्स बेचते हैं या एलआईसी के काम में होते हैं, दे प्रेफर टू स्टिक टू देयर लाइन. क्योंकि वो ये कहते हैं कि जब शुरू में हमने उसको अपने क्लाइंट्स बनाने के लिए मेहनत करी है, तो बाद में हम लाइन शिफ्ट करके वो मेहनत खराब नहीं कर सकते. क्योंकि लोग सोचेंगे तो बार बार चेंज करता रहता है, इसको नॉलेज नहीं है, दे विल नॉट ट्रस्ट यू. और जब हम ऐसा करते हैं, एक ही जगह रहते हैं और अपना ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, वी क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन द बायर टू बाय फ्रॉम अस. तो उसके लिए क्या होगा, अब मोस्ट ऑफ द टाइम आपने ये देखा होगा, चाहे आप ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद भी, क्या आप कस्टमर को कस्टमर अपने आप आपके पास चलकर आता है कभी? वी डू सो मैनी कोल्ड कॉलिंग्स. अभी मुकेश जी ने बताया उनके 300-400 क्लाइंट्स हैं. अजय ने बताया उनके 70-80 क्लाइंट्स हैं. तो अजय, क्या ये 70-80 क्लाइंट्स अपने आप चलकर आपके पास आए थे या आपको उन्हें बुलाना पड़ा था? मैम कुछ तो जब मैंने कंपनी ज्वाइन करा उसमें से कुछ पुराने क्लाइंट्स थे. पुराने क्लाइंट्स को भी आपने अवेयरनेस दिया ना पहले कि मैंने शिफ्ट कर लिया है, अब मैं यहाँ पर हूँ, कुछ काम हो तो बताना. नहीं, मेरी फर्स्ट जो भी यहीं से स्टार्ट हुई मैम, पहली कंपनी से यहीं से स्टार्ट हुई. तो सेल्स में एक नियम है कि क्लाइंट कभी भी आपके पास चल के खुद नहीं आएगा, आपको उससे बुलाना पड़ेगा. आप सब ने मुझे लिंक्डइन पे या फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू देखा होगा कि दीपाली इज अ सेल्स कोच. लेकिन आज की इस वर्कशॉप के लिए मैंने आप सबको इनवाइट किया है, तब आप मेरे लिए टाइम निकाल रहे हैं. डू यू अग्री? अभी तक अगर लिंक्डइन पे या फेसबुक पे आपने मुझे देखा होगा तो उसके थ्रू आप मेरे पास नहीं आए. आज जब मैंने आपको इनवाइट करा, आप मेरे पास आए. तो इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए यू हैव टू गो टू द कस्टमर. क्लाइंट विल नॉट कम टू यू ऑटोमेटिकली, एंड दैट इज द मेन थंब रूल ऑफ द सेल्स.
कि क्लाइंट को रीच करने के लिए हमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, एक्शन लेना पड़ता है। हम ये नहीं सोच सकते कि घर बैठे मैं बैठा हूँ, वो मुझे जानता है कि मैं सेल्स एक्सपर्ट हूँ, ऑटोमेटिकली मुझे कॉल कर लेगा। ऐसा बहुत कम होगा, और वो कॉल भी करेगा ना तो ही विल नॉट बाय एनीथिंग ट्रस्टिंग यू। वो आप कितने एक्टिव है मार्केट में उसको देखकर आपका इंपैक्ट क्रिएट होता है, और उसको देखकर ही आपके पास वो आता है और कोई सामान लेता है। तो क्लाइंट के पास अगर हमें इंपैक्ट क्रिएट करना है, मेक दिस लास्ट डॉट, इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए आपको क्लाइंट को बुलाना पड़ता है, तब क्लाइंट आपके पास चलकर आता है। तो मेक दिस लास्ट डॉट, क्रिएट इंपैक्ट। क्रिएट इंपैक्ट, बायर आपके पास चलकर, आपने बायर को बुलाया, यहां से बायर आपके पास चलकर आया, देयरइन यू मेड द इंपैक्ट ऑन द बायर। और जब इम्पैक्ट आपका आपका इम्पैक्ट असली में जब क्रिएट होता है, तो ये तब सिचुएशन आती है जब बायर को ये पता है कि यू आर अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉब्लम एंड यू विल प्रोवाइड देम द सॉल्यूशन फॉर देयर प्रॉब्लम। जब बायर को ये दो ट्रस्ट आप पे हो जाएंगे, दैट मीन्स योर इम्पैक्ट इज क्रिएटेड। फर्स्ट यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड लिसनिंग देयर प्रॉब्लम, एंड यू आर द राइट पर्सन टू गिव सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम। डू यू अग्री विद दिस? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद दिस? कि बायर को अगर हमने अंडरस्टैंड नहीं करा और उसको सोल्यूशन नहीं दिया, तो चीजें आधी अधूरी रह जाएंगी, वो सबसे पूछता फिरेगा, एंड ही विल नॉट टेक यू एज एन एक्सपर्ट, राइट? तो इसकी ये अभी मैंने आपको सारा थ्योरेटिकल बताया है, इसका सारा प्रैक्टिकल वर्जन आई विल टेल यू लेटर इन द वर्कशॉप। सो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, आई एम श्योर आप सबने बहुत सारे सर्टिफिकेशंस, बहुत सारी वर्कशॉप्स ज्वाइन करे होंगे पहले भी, जिसमें होता है कि वो पूरे वर्कशॉप का एक मोमेंटम क्रिएट करते हैं, लास्ट में दे पिच देयर प्रोग्राम। तो उसमें क्या होता है, जो मैंने पर्सनली फील करा है कि हमारा पूरे प्रोग्राम का मोमेंटम खत्म हो जाता है, क्योंकि लास्ट में पिच पे हमारा कंसंट्रेशन रह जाता है कि अब वो क्या देने वाले हैं। तो टू ब्रेक दिस बैरियर, मैं भी एक प्रोग्राम आपको पिच करने के लिए आई हूँ, और मैं अपनी जर्नी और वो प्रोग्राम आपसे अभी शेयर करना चाहूंगी इन द मिडल ऑफ द प्रोग्राम, सो दैट बाकी का जो टाइम हमारा वर्कशॉप का बचेगा उसमें मैक्सिमम आपकी ग्रोथ के लिए बात करें। इज इट ओके? So before I proceed, I would like to share my journey with all of you. It started in 1996 when I joined my college. शुरू से बहुत एक्टिव थी, बाय गॉड्स ग्रेस बोलने का शौक शुरू से ही था, तो आई वाज द हेड गर्ल ऑफ माय स्कूल आल्सो। I joined union in my school, in my college. I became the president of my college. As a president, मैंने बहुत सी चीजें सीखी, how to manage team, how to lead with passion, and how to सबको साथ में लेके चल के ही विकास है, जैसे कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, वो चीज मैंने वहां से सीखी। बट सेल्स वॉज नेवर ऑन द पेपर, कभी सोचा नहीं था कि सेल्स में जाऊंगी, और लड़कियों के बारे में तो ज्यादा ही सोचा भी नहीं जाता कि सेल्स में जाएंगी। बाय गॉड्स ग्रेस वी वर थ्री सिस्टर्स, वी आर थ्री सिस्टर्स। इवन देन पेरेंट्स ने इतना अच्छा सपोर्ट दिया हमेशा। मेरी मदर हमेशा ये कहती थी कि तुम लड़कियां भी हो, लेकिन जब तक 2 साल जॉब नहीं करोगे ना, किसी की शादी नहीं करूंगी, अपने पैरों पे खड़े होके जाने। बाद में जॉब करो नहीं करो तुम्हारा चॉइस है, लेकिन जॉब करके दुनिया को समझना बहुत जरूरी है। तो विद दिस ब्लेसिंग हम लोगों ने ग्रेजुएशन के बाद मैंने एक ऑटोमोबाइल्स लाइन ज्वाइन करा। वहां पर मुझे स्टार्टिंग हुआ 2200 रुपये महीना से, लेकिन आई वॉज द सेल्स कोऑर्डिनेटर देयर, क्योंकि सेल्स के बारे में एस भी नहीं पता था, तो आई स्टार्टेड एज अ सेल्स कोऑर्डिनेटर। सेल्स कोऑर्डिनेटर बन के वहां के वाइस प्रेसिडेंट को पता नहीं मुझ में क्या दिखा, ऑल ऑफ अ सडन आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ हिज क्लाइंट, गाड़ी के बारे में समझा रही थी, तो वो मेरे पास आए कि व्हाई डोंट यू ज्वाइन माय सेल्स टीम। आई वाज शॉक्ड, सर क्या बात कर रहे हो, आई एम अ कोऑर्डिनेटर हियर, सेल्स तो मुझे एस भी नहीं आता है उसका। नहीं नहीं, मुझे लगता है तू सेल्स ना बहुत अच्छे से कर सकती है, यू हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। सो दैट वाज द फर्स्ट डे व्हेन आई हर्ड माई सेल्फ दैट आई कैन डू सेल्स। तो ही सेंड मी द ट्रेनिंग ऑफ द वैगनर। वैगनर तब लॉन्च होने वाली थी 1999 2000 में, तो उन्होंने मुझे बोला कि वैगनर की ट्रेनिंग आ रही है, तो उसमें जाके करके और आके तू मुझे एक्सप्लेन करेगी, और शोरूम में अगर 5 बंदों को तूने एक्सप्लेन कर दिया, देन योर सेल्स लाइन इज फिक्स्ड। आई वेंट ऑन द ट्रेनिंग, आई केम बैक, बाय गॉड्स ग्रेस तभी हमारी शोरूम में नई गाड़ी आई थी वैगनार, एंड ही कॉल्ड ऑल 60-70 का स्टाफ, जितने भी हमारे को वर्कशॉप से भी बुला लिया सबको, जितने मैनेजर्स थे, एवरीबडी केम देयर, एंड ही स्टार्ट की ही सेड सेल वैगनार टू ऑल ऑफ देम। तो तब
मुझे फर्स्ट टाइम एहसास हुआ कि सेल्स अगर मुझे इनको करनी है तो मुझे कोई टैक्टिक्स नहीं बतानी है उनको, मुझे ऑनेस्टी के साथ जितना मेरा नॉलेज है मुझे वो शेयर करना है। तो जितना वैगन आर के बारे में मैं सीख के आई थी मैंने सब उनको पूरा उसके फीचर्स वगैरह बताया, एक एक चीज जिसने पूछा मैंने बताया। एंड उसमें से जो 4-5 लोग थे, मेरे 4-5 कोलीग्स थे, दे केम फॉरवर्ड कि वी आर रेडी टू बाय दिस कार, दिस इज अ वंडरफुल लॉन्च द मारुति हैज मेड। देन सर लुक्ड एट मी और कहते हैं कि मैंने ऐसी तुझे नहीं बोला था यू आर मेंट फॉर सेल्स। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एंटर्ड इन द सेल्स जर्नी। उसके बाद से सेल्स और मैंने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। आई वेंट ऑन दिस जर्नी फॉर 5 years इन ऑटोमोबाइल्स। देन आई चेंज माई जॉब टू एक्सपोर्ट हाउस and I got married to the exporter later on. So I joined him in his business. 15 साल मैंने अपने हस्बैंड के साथ एक्सपोर्ट का सेल्स और एडमिनिस्ट्रेशन संभाला, क्योंकि फॉर गर्ल्स आफ्टर मैरिज लाइफ इज नॉट इजी। आई होप यू ऑल विल अग्री। 2 बच्चे थे, लेकिन सेल्स का पैशन था, इसलिए 3 घंटे के लिए ऑफिस जाती थी, जितना सेल्स या एडमिनिस्ट्रेशन हो पाता था करती थी। ड्यूरिंग दैट जर्नी मी एंड माई हस्बैंड डिड 6 इंटरनेशनल फेयर्स. And in that I met lots of exporters and lots of international clients, जहाँ मेरा और कॉन्फिडेंस बढ़ा। और हर जगह ना सेल्स के सिर्फ 2 ही फंड थे। When you create awareness that you're an expert of something, people trust you. And secondly, आपको 10 चीजें नहीं बेचनी है, जिस चीज में आपकी मास्टरी है आपको उसी पे फोकस करके आगे बढ़ना है। Then only you can understand your buyer and you can understand their problem to solve it. Journey kept going. In 2020, when COVID hit everyone, that time it hit me also. तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो मैं सेल्स कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, सेल्स तो ग्रो कर रही है, कंपनी भी ग्रो कर रही है, वी आर ऑल्सो ग्रोइंग, बट अंदर से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। So that was the time again I did one shift in my life. One of my senior told me कि दीपाली you are not meant for, अब तेरा सेल्स बहुत हो गया, now it's the time to give back to the society. Do something wherein you can share your knowledge back to the people and help them to grow. That was the time when I started my मनमौजी सफर in 21. 21 के बाद मुझे लगा कि दोबारा अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी हो गया है। एंड बाय दैट टाइम माय किड्स वर आल्सो इन 10th and 12th. माय बोथ द किड्स वर हैविंग बोर्ड्स इन द सेम ईयर. सो आई टुक अ सबैटिकल. खाली तो बैठना नहीं था, अपने आप को अपस्किल करना बहुत जरूरी था। उन 2 सालों में मैंने अपनी एमबीए पूरी करी. आई डिड माय एमबीए इन मार्केटिंग. बाय गॉड्स ग्रेस दिस जनवरी में आई गॉट माय डिग्री. तो सफर यही चलता रहा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम किसी भी सफर पे चलते हैं हमें 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नॉलेज जो हम गेन कर रहे हैं उससे हम लोगों को किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। ईमानदारी, ऑनेस्टी इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी फील्ड। एंड थर्डली, अपने आप को अपस्किल करना बहुत जरूरी है। सेल्स में ये कहा भी जाता है, इफ यू आर नॉट अपडेटेड यू आर आउटडेटेड। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? इफ यू आर नॉट अपडेटेड यू आर आउटडेटेड। और वैसे भी ना 2020 से पहले हमारा जो पूरा मार्केट था दैट वाज अ सेलर्स मार्केट. नाउ इट हैज बिकम बायर्स मार्केट. पहले सेलर के पास जो होता था वो जिसको बेचता था ना उतना वो लोग खरीद लेते थे. अब इट हैज बिकम बायर्स मार्केट. एवरीथिंग इज नॉट टिप्स ऑफ द मोबाइल. कुछ भी लेने से पहले 10 क्वेश्चन वो चैट जीपीटी से पूछेगा, तब आपको कंफर्म करके हाँ या ना करेगा. तो नाउ यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड. थिंकिंग ऑल दिस ओनली when I kept moving as a coach, sales coach, 3-4 साल मैंने कोचिंग कर रही हूँ, मैं 3-4 साल से सेल्स कोचिंग कर रही हूँ. Then I realized कि now my knowledge is very limited to few people. और कुछ सेल्स के लोग ऐसे हैं जब आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो their mindset is same because of sales. So with that intention, I have launched my sales suffer community. अभी 3 महीने पहले ही मैंने अपनी सेल्स सफर कम्युनिटी के बारे में सोचा और मुझे लगा कि जब हम लाइक माइंडेड पीपल को एक साथ लेके आते हैं. I joined one of the community 3 years back and you won't believe it has changed my life 360 degrees. मैं अपने आप को सेल्स एक्सपर्ट समझती थी, लेकिन उसने मुझे रिफाइन करा. तराशते ना हीरे को, वो मुझे उस कम्युनिटी ने तराशा. We are different background coaches, but still the mindset is same to help and support people, to grow people. So with that intention, I started my sales suffer community 2 months back. जिसके अंदर मैं चाहती हूँ सबको ना हर तरह की कम्युनिटी मिल जाती है. मोटिवेशन कम्युनिटी, माइंडफुल कम्युनिटी, योगा कम्युनिटी, हर तरह की कम्युनिटी आपको मिलेगी. एचआर एसोसिएशंस मिलेंगी. सेल्स एसोसिएशंस मुझे कहीं नजर नहीं आती. तो मुझे लगा एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया जाए. जितने भी हम सेल्स के लोग हैं सब एक साथ आके जुड़ें, अपने एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ शेयर करें, आपस में शेयर करें, जहां स्टक फील होते हैं एक दूसरे को हेल्प करें. और ये कम्युनिटी सिर्फ खुद
को ग्रो करने के लिए नहीं, सबको ग्रो करने के लिए. So with that intention, I started this community. And before I proceed, let me give you some glimpse of this community. Just a second. Let me share. Can you see this page? This page is visible to all of you? Yes. Yes, ma'am. Okay. So I started, this is a Sales Hub community by me, Dipali Jain. This is my journey so far of 25 years. सेल्स मुझे लगता है कि मैंने 96 में जब कॉलेज ज्वाइन किया था, प्रेसिडेंट बनती तभी शुरू कर दिया था, कि तब टीचर्स को कन्विंस करना होता था हाउ टू हैव मैक्सिमम फंड्स फ्रॉम देम फॉर माय फेस्ट. के लिए और एक्टिविटीज के लिए टीचर से कैसे फंड्स निकालने, एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे फंड्स निकालने, वो टैक्टिक्स मेरी तब से शुरू हो गई थी. तो आई इंक्लूड दैट एक्सपीरियंस आल्सो इन माय सेल्स एक्सपीरियंस. तो दिस इज माय 25 years of journey, and this is in Sales of our community. We are having a program of 12 weeks and ecosystem of 15 months. इसमें ये सिस्टम होता है कि पहले 8 हफ्ते इसके अंदर आपके बारे में आपको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, फिर आपकी सेलिंग स्किल को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा. देन वी विल गो टू क्रिएट अ बिगर इम्पैक्ट इन द सोसाइटी. So this is in the first 8 weeks, I'll be working completely only on you, your core values, your future, your unlived life, and how to overcome your internal resistance. सेल्स के लिए हम लोग ये मानते हैं कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस को, अपनी इंटरनल लिमिटेशंस को जब तक हम दूर नहीं करेंगे, हम सेल्स को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, एक्सप्लोर नहीं कर सकते. सो इन द फर्स्ट 8 weeks, I'll be working on your Make It Happen framework. Next 4 weeks, I'll be working completely on your selling skills, how to upskill it and how to make it better, and how to generate more and more maximum revenues from your selling skills. उसके बाद ये जर्नी खत्म नहीं होती है. आई एम क्रिएटिंग अ इकोसिस्टम जिसमें हर ऑल्टरनेटिव मंथ्स मैं एक इनिशिएटिव आपके लिए लेकर आऊंगी रिलेटेड टू योर सेल्स ओनली, उसको वहां प्रैक्टिस करके हाउ यू कैन अप्लाई दैट इन योर वर्किंग स्टेशन, इन योर वर्क. 8 हफ्ते आप पे काम करा जाएगा, 4 हफ्ते आपके स्किल्स पे काम करा जाएगा. उन 12 हफ्ते के बाद यू विल बी रेडी एज अ, यू आर ऑलरेडी अ सेल्स प्रोफेशनल. इट विल रिफाइन यू फर्दर इन अ बेटर सेल्स प्रोफेशनल. अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आपको उसमें भी बहुत हेल्प होगा, अगर आपका स्टार्टअप है उसमें भी बहुत हेल्प होगा. और 15 मंथ्स का जो इकोसिस्टम है, दिस इकोसिस्टम इज अबाउट हर ऑल्टरनेट महीने हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करेंगे, कुछ ना कुछ केस स्टडीज करेंगे जो आपको हेल्प करेगा अगर आप कहीं भी स्टक फील कर रहे हैं उसको ओवरकम करने में. और उससे भी ज्यादा जब आप अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों से मिलते रहते हैं ना, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते रहते हैं, तो लगता है कि प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है जितना मैं सोच रहा हूं. मैं जिंदगी के कठिन सफर में अकेला नहीं हूं, कम्युनिटी की वो पावर है. और इसके लिए मुझे चाहिए होगा आपका टाइम कमिटमेंट. इट विल बी 5 hours इन अ वीक. हर हफ्ते में आपके 5 घंटे मुझे चाहिए होंगे, जिसमें से 2.5 घंटे का हमारा हर सैटरडे सुबह 8:30 से 11 बजे तक एक लाइव सेशन होगा, जिसके अंदर आई विल गिविंग यू ऑल द फ्रेमवर्क हाउ टू ग्रो योर सेल्फ. आधा घंटा हम लोग 1-on-1 कॉलिंग पे कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से, टू अंडरस्टैंड अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई भी इश्यूज है हम डिस्कस कर सकें. और 1 घंटा जो आपको एक्टिविटी दिया जाएगा, कोई भी असाइनमेंट दिया जाएगा ड्यूरिंग द वर्कशॉप, वो आपको उसके लिए निकालना होगा. I want this 5 hours commitment from you when you join my community. इसके कुछ important dates हैं, just a second. My next batch is starting from 27 June, जिसका इंडक्शन कॉल होगा 28 जून को, जिसमें हम लोग पूरे एक बैच को वेलकम करेंगे, जो भी लोग भी ज्वाइन करेंगे. और 24 आज से ही आप अगर इसमें कोई भी क्लैरिटी चाहिए, आपको इसके बारे में कुछ भी समझना है, यू कैन कॉल मी, आई विल गिव यू माय नंबर. We can connect on the call so that you have a clarity where exactly we are heading and what all you will get from my ecosystem. जो investment होगा आपका, that will be for 12 weeks. You have to do the investment of 56,000 including GST. और अगर आप 18 months का ecosystem join करते हैं, that will be 99,120 including GST. Ecosystem का मतलब ये नहीं है, ecosystem का मतलब ये है कि I'll be हैंड होल्डिंग टू यू फॉर नेक्स्ट 18 months. और ये 18 months के बाद जर्नी खत्म नहीं होती है. एक बार जब हम कम्युनिटी में जुड़ जाते हैं, इट बिकम्स अ फैमिली, तो इट गोज ईयर एंड ईयर.
and this fees will keep increasing in every 5 months 5%. So you can always grab the opportunity. If you want to have any clarification, you can book an induction call with me on this number. Induction call में first I will understand what exactly you want. Then I will see, what exactly I can give you from my program, whether this program is fit for you or not. Straight away मैं आपको बताऊंगी program आपके लिए है कि नहीं है. और third step मेरा उसमें होगा कि how I can fast forward your journey to generate more revenues. Okay? So this is about my program. To schedule an induction call, I'll be available from today. आप मुझे एक मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे 9319137396. मैं इसको चैट में भी डाल दूंगी. आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, I attended the workshop today. I want to book an induction call. So we will have a 15 minutes quick induction call and we will talk about your journey. So this is all about me. Going further, देखिए इस इकोसिस्टम का मेरा मेन मिशन है, we will give you 5 things. One, we will give you the ecosystem. One is we will give you Make It Happen framework, certification for the 12 weeks that you spend with me. One-on-one mentoring is always available to you, and the community support will always be there with you. So you'll get these 5 things for this investment. Thank you for listening to me. Going forward, let's start your journey now. अभी हमने ये फ्रेमवर्क बना लिया है. ये हमारा सारा अभी थ्योरेटिकल है कि क्रिएट इम्पैक्ट करना है, बिल्ड ट्रस्ट करना है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है. हाउ टू मेक इट रियली हैपन. फॉर दैट लेट्स कम टू दिस. ये वाला अपना टेम्पलेट उठा लीजिए. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. गुरप्रीत जी आप एक बार म्यूट करिए प्लीज अपने आप को. Yes, I have done it. Just a second. ये सबका टेम्पलेट रेडी है? Just give me a minute. 1 मिनट दीजिएगा. जनरली जब भी हम इस टाइप के इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं ना, हमारे पास बहुत सारी लिमिटेशंस दिमाग में आती है. और जब भी हम कोई नया काम इस टाइप का बड़ा करने जाते हैं ना, सबसे पहले दिमाग में आता है मैं क्यों करूं. लिमिटेशंस विल कम. अभी तो बजट अलाउ नहीं कर रहा है, अभी तो बच्चों की फीस जानी है, अभी घर में ये हो गया, कोई ना कोई इमरजेंसी भी आ सकती है. बट माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, जब हम लिमिटेशंस के ऊपर पॉसिबिलिटीज को देखना शुरू करते हैं ना, लाइफ गिवर्स अकॉर्डिंगली वही चीजें हमको आगे मिलती जाती हैं. जब हम नेगेटिव को देखते हैं तो दिमाग में नेगेटिव चीजें ज्यादा आती हैं, और जब हम पॉजिटिविटी साइड को देखते हैं तो पॉजिटिव चीजें ज्यादा आती हैं. तो इफ यू थिंक अबाउट दिस प्रोग्राम, आई एम नॉट, वेदर यू बाय इट और नॉट, दैट इज योर चॉइस, बट माई इंटेंशन इज टू जस्ट अपडेट यू. जब आप इस इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें तो आपको अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना है, और ये इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा और क्या नहीं होगा उस पर एक बार जरूर सोचिएगा. एंड पॉसिबिलिटीज अगर दिमाग में आएंगी तो ग्रोथ विल बी ऑन द हायर साइड. मैंने टोनी रॉबिन्स के एक स्टेटमेंट वो हमेशा देते हैं जो मुझे बहुत पावरफुल लगती है, और मैं सबको जरूर लिखवाती हूँ. मैं आपको भी चाहूंगी प्लीज ये 2 पावरफुल लाइन लिखिए. इसके 2 पार्ट्स में है ये. एज पर टोनी रॉबिन्स, just a second, he always says, when you focus on your growth, you are with the limited mindset. Yes, just a second. Till the time you focus on your success and happiness, your growth will be limited. Till the time you focus on your own success and happiness, your growth will be limited. For example, मुकेश जी, अजय ने बताया, दर्शन जी, यस प्लीज. आप भी सेल्स में हैं? सेल है में है, और इसके अलावा और भी कुछ काम है. कहाँ रहते हैं आप? मैं मोहाली रहता हूँ. मोहाली में आपका अपना घर है? यस, एंड यू आर अर्निंग वेल कि घर की सारी जरूरतें हमारी आराम से पूरी हो रही हैं? डेफिनेटली. तो जब उस घर की जरूरतें हमारी आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली, इफ आई से यू आर अर्निंग 2 लाख रुपीज अप्रोक्सीमेटली वी टेक पर मंथ, जिसके कारण हमारी सारी सहूलियतें आराम से पूरी हो रही हैं, अपने घर में रहते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना काम जैसे चल रहा है हम चलाने को रेडी हैं. ठीक है. आप ये मानते हैं कि इस जो आप अभी कमा रहे हैं और जिससे आप सेटिस्फाइड है,
आप जिसमें सक्सेस और हैप्पीनेस फील कर रहे हैं, उसी के साथ अगर चलते रहेंगे तो हमारी ग्रोथ इतनी ही रहेगी। डेफिनेटली उतनी ही रहेगी। और इसी का सेकंड पार्ट जो कहता है, जब आप ये सोचेंगे कि जो नॉलेज मेरे पास है, जो सामान मैं बेच रहा हूं, अगर मैं मैक्सिमम लोगों के पास रीच आउट करूंगा और मैक्सिमम लोगों को उससे बेनिफिट कराऊंगा, तो आपकी ग्रोथ भी बढ़ेगी क्योंकि सेल्स बढ़ेंगी। हाँ जी, बिल्कुल। तो 2026 में आप ये मानते हैं, अगर आज की डेट में आपको एज अ सेल्स एक्सपर्ट अगर 1,000 लोग जानते हैं, और अगर आप 3,000 लोगों तक अपनी अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, तो आपकी सेल्स भी उतनी बढ़ेगी, मल्टीप्लाई होगी डेफिनेटली। मल्टीप्लाई बस होगी। विल और इंक्रीज जब वो मल्टीप्लाई होगा तो हमारा रिवेन्यू मल्टीप्लाई होगा, होगा। अंदर हमारी सक्सेस और हैप्पीनेस मल्टीप्लाई होगी कि वी आर हेल्पिंग मोर पीपल। यस। बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मनी दैट वी आर अर्निंग, इट्स अबाउट हेल्पिंग पीपल ऑल्सो। जब हम लोगों को अपने साथ ग्रो करते हैं तो हमारी ग्रोथ ऑटोमेटिकली फिक्स्ड है। बिल्कुल। तो इसी का सेकंड पार्ट है, व्हेन यू शिफ्ट योर फोकस टू सक्सेस एंड हैप्पीनेस ऑफ अदर्स, योर ग्रोथ बिकम्स अनलिमिटेड। बिल्कुल। फर्स्ट पार्ट अगर कहता है अगर आप अपने तक अपनी हैप्पीनेस को रखोगे तो वो लिमिटेड रहेगा। जब आप अपना फोकस शिफ्ट कर देते हो लोगों को हेल्प करने के लिए, लोगों की ग्रोथ के लिए, तो ऑटोमेटिकली योर ग्रोथ बिकम अनलिमिटेड। बिल्कुल बोलिए। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जब आप इस प्रोग्राम के बारे में सोचे, इट इज नॉट जस्ट अ प्रोग्राम आई एम सेलिंग यू, इट्स अ माइंडसेट। हम लोग ना जनरली हम लोग ये सोचते हैं अगर हम सेल्समैन, हम अपने बारे में सब कुछ जानते हैं। थैंक यू दर्शन जी। हम अपने बारे में सब कुछ जानते हैं और हम लोग सबको सब कुछ बेच सकते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव केम अक्रॉस सच एक्सपीरियंस सेल्स प्रोफेशनल्स जो 25-25 साल से सेल्स कर रहे हैं और वीपी की पोजीशन में हैं। एंड व्हेन आई डिड दिस प्रोग्राम विद देम, दे लिटरली वर शॉक्ड सीइंग देयर माइंडसेट। मैडम, जो बात आप कह रहे हैं ना, हाँ एज ए जी, कंपनी आल्सो दिस इज द कॉन्सेप्ट इन द कंपनी आल्सो दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ द क्लाइंट्स। अगर उनका ख्याल रखेंगे तभी वो हमारे पास आएंगे, या हम और सेल कर पाएंगे और प्रोडक्ट बता दें। इट इज देयर वेलफेयर, उनकी होगी तो हमारी अपने आप होगी। ट्रस्ट के साथ ही काम करते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट एवरीवेयर इन एवरी कंपनी, ट्रस्ट। यस। सेल्स वालों को तो ये मंत्र है। इसी के बारे में आगे आई विल टेल यू कि मेरा एन सेलिंग और के सेलिंग क्या है अभी। तो पर्पस ये है कि व्हेन यू थिंक अबाउट दिस प्रोजेक्ट, व्हेन यू थिंक अबाउट दिस इन्वेस्टमेंट, जस्ट डोंट थिंक कि आपको पर्सनल ग्रो करना है। इट इज द कम्युनिटी ग्रो दैट यू विल टेक केयर ऑफ। और खुद का विकास तभी सबका विकास, राइट। गोइंग फॉरवर्ड ये हमारा रेडी है। तो इसमें सबसे पहले एज अ सेल्स पर्सन जब हम बात करते हैं तो हमें काम करना होता है बायर की नीश पर। As a salesperson, the first secret I'm going to share with you today is understand the niche of the buyer. Write down niche here. Niche. Once you create awareness, the important is आप अपने बायर को, उसकी नीश को कितने अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम एज अ सेल्स पीपल, काफी सेल्स लोगों को आपने देखा होगा कि वो सिर्फ ना जाते हैं, अपना सामान जो उनका है वो उसके बारे में बताया, उसके बारे में ऑर्डर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो इट्स ओके फॉर देम। टारगेट पूरा करने की होड़ में वो सिर्फ जितना नॉलेज उनके पास है जाके उसको देते हैं, नहीं होता तो दे कम बैक एंड ब्लेम कि प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है या इसमें प्रॉब्लम है। बट दे डोंट अंडरस्टैंड द नीश ऑफ द बायर। वंस यू अंडरस्टैंड द नीश ऑफ द बायर, फोकस इनसाइड, एंड इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉब्लम, यू आर फोकसिंग आउटसाइड। तो ये जो एन सेलिंग और के सेलिंग है ना, इसमें एन सेलिंग में हमारे सारे आएंगे जो सेल्स में हमें डोंट्स होते हैं सेल्स के, और के में आएंगे जितने भी हमारे डूज होते हैं सेल्स में। सेल्स करते हुए हमें जितने भी नहीं काम करने चाहिए वो एन में लिखिएगा, और के में हम लिखेंगे जो काम हमें करने चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी अभी। तो व्हेन यू फोकस आउटसाइड, सो व्हाट यू डू, यू आर जस्ट सेलिंग योर ओन प्रोडक्ट। हम कई बार सेल्स फनल की ट्रैप में भी आ जाते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि पहले अपने प्रोडक्ट को सस्ता बेचो, फिर थोड़ा सा उसका दाम बढ़ाओ और फिर उसको हाई टिकट पे बेचो। ऐसा कर रहे हैं हम लोग कोई भी? जैसे आपने कई मास्टर क्लासेस में भी देखा होगा, पहले वो कहते हैं ज्वाइन इन 99 रुपीज। 99 रुपीज में आप कोई वर्कशॉप ज्वाइन करते हैं तो फिर वो कहते हैं पे फॉर द फर्स्ट प्रोग्राम 15,000 रुपीज। आप 15,000 का ज्वाइन करना चाहते हो, कहते हैं पे फॉर 1 लाख रुपीज। So this is a sales funnel trap which most of the people follow. But my funda is clear. पहला वर्कशॉप एक देना है जो फ्री होगा, उसके अंदर एक ही वर्कशॉप सेट करा हुआ है कि जो पूरा एक इकोसिस्टम होगा जिसके अंदर बार बार पैसा न निकलवाना है,
ना टाइम वेस्ट करना है, और क्योंकि सेल्स फनल में जब हम जाते हैं तो उसमें मेरा भी टाइम बहुत ज्यादा लगता है। आई हैव टू कीप अ अपडेट ऑफ एवरी डेटा। और स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें जब मैं देती हूँ, कस्टमर के दिमाग में भी रहता है कि एक्सपीरियंस बंदा है, मेरे को अंडरस्टैंड कर रहा है, मुझसे एम्पथी रखता है, और जो देगा वो एक सही सटीक तरीके से देगा, मुझे समझ के देगा। तो ऑन द के साइड राइट डाउन, अगर हम फोकस इनसाइड करते हैं बायर के लिए, तो वी हैव अ लिसनिंग, वी मस्ट हैव अ गुड लिसनिंग, नंबर वन। वी मस्ट शेयर आवर एक्सपीरियंस इंस्टेड ऑफ जस्ट सेलिंग द प्रोडक्ट, हमें सिर्फ प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है बायर से। थर्ड इज अंडरस्टैंड योर बायर विद गुड लिसनिंग। यू शुड हैव एम्पैथी विद द बायर, नॉट सिंपैथी। किसी पे दया करके हमने कुछ नहीं देना है, हमें उनको समझ के देना है कि वाकई वो उनके लिए जरूरी है, ये मुझे थोपना नहीं है कुछ भी किसी पे। नेक्स्ट इज टाइमली डिलीवरी इन सेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं आपसे कह दूं कि मैं इंडक्शन कॉल आपके लिए प्लान कर रही हूं, और जब आप मुझे मैसेज करें, मैं आपसे बोलूं 4 दिन बाद मिलूंगी, विल यू ट्रस्ट मी? अभी तो वर्कशॉप में बोल कर गई है 1 घंटे में अवेलेबल, और अब कह रही 4 दिन बाद मिलेंगी। 4 दिन बाद आपके दिमाग से भी निकल जाएगा मैंने वर्कशॉप में आपसे क्या बात करी है। तो you will lose interest in me, right? So that way, these are the 5 points that you need to write: listening, experience sharing, understanding, empathy, timely delivery, and as Mr. Darshan said, services. That's very important. All this can come when you focus inside while selling. Make sense? Shall I repeat? Focus inside जब हमारा होता है तो it's listening, experience sharing, understanding, empathy, timely delivery and services. और जब हम सेलिंग सिर्फ अपने टारगेट पूरा करने के लिए करते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता कस्टमर को फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, कस्टमर की क्या जरूरतें पूरी हो रही है नहीं हो रही, बस मैं अपना टारगेट पूरा कर लूं, दैट टाइम वी आर फोकसिंग आउटसाइड। कैन यू सी दिस? आई विल रीड आउट। सेलिंग योर ओन प्रोडक्ट, सिर्फ हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हमें रिलेशनशिप कोई डेवलप नहीं करनी कस्टमर के साथ। सेल्स फनल ट्रैप में हम उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, हम खुद फंस रहे हैं। हम लिसनिंग करना ही नहीं चाहते, सिर्फ हमने अपना प्रोडक्ट बताया, आप सुनो, नहीं चाहिए चाहिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। दैट इज सेलिंग आउटसाइड। नो एम्पैथी एंड यू आर शोइंग सिंपैथी। अगर आप ये नहीं लोगे तो पता नहीं आपका ये नुकसान हो जाएगा, आपको वो नुकसान हो जाएगा। वी आर टॉर्चरिंग एंड ब्लैकमेलिंग कस्टमर्स। दैट विल नेवर वर्क इन द सेल्स। सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द नीश ऑफ द बायर, niche of the client. This is the first secret for sales people. I hope ये आप सब लोग कर भी रहे होंगे और आप सभी मानते भी होंगे, but at times we ignore it. टारगेट्स पूरा करने के लिए हम भूल जाते हैं कि हम सेलिंग आउटसाइड कर रहे हैं या इनसाइड कर रहे हैं। The next step that secret comes in is selling with equity. जब तक हम अपनी इक्विटी बिल्ड नहीं करेंगे, लोगों में अपना ट्रस्ट बिल्ड नहीं करेंगे, they will never invest on us. I hope you agree, Mr. Darshan. जब तक हम अपना ट्रस्ट बिल्ड नहीं करेंगे, तब तक कस्टमर हमारे पास नहीं आएगा, और ट्रस्ट बिल्ड करने का सबसे अच्छा तरीका है इक्विटी। द सेकेंड सीक्रेट फॉर टुडे इज इक्विटी, बिल्डिंग इक्विटी। आई स्टिल रिक्वेस्ट रेस्ट ऑफ द पीपल टू प्लीज कम ऑन द कैमरा। सेल्स वाले होके अगर हम कैमरा को फेस नहीं कर पा रहे हैं ना, तो सेल्स वैसी अधूरी है, वो मजा आना ही नहीं है अगर सेल्स में कैमरा ऑन नहीं है तो। यू ऑल आर सच नाइस पीपल। सेल्स वाले कभी डरते हैं किसी से फेस करने से? नेवर। क्यों दर्शन जी? सेल्स में अगर फेस करने से डर गए तो सेल्स कैसे करेंगे? नहीं I नहीं, hope you बिल्कुल agree, फेस, Vinod ji, as well. I'm gonna has to face the client, so face has to be हमारा ग्रेस ही फेस करना है, हमारा ग्रेस ही इसमें है। वी एम्ब्रेस आवर प्रोफेशन व्हेन वी फेस द कस्टमर। कहते हैं ना, सेल्स पीपल आर द फर्स्ट फेस ऑफ द कंपनी, और पहला चेहरा ही अगर छुप जाएगा तो बताओ सेल कैसे होगी? तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, हमें चेहरा छुपाना नहीं है, वी आर सेल्स पीपल, बस भिड़ जाओ। तो सेकेंड स्टेप इज इक्विटी, बिल्डिंग इक्विटी। अब बिल्डिंग इक्विटी के लिए लोग क्या करते हैं? आई विल शेयर वन स्मॉल इंसिडेंस विद यू। एक बहुत छोटी सी स्टेशनरी की शॉप थी, जहां पर पार्कर का पेन हमारा 300-400 रुपए का आता है। फॉर एग्जाम्पल, पार्कर पेन 300-400 रुपए का आता है। दुकानदार ने देखा मेरे पार्कर के पेन्स नहीं बिक रहे हैं, तो एक क्लाइंट उनके पास आया। क्लाइंट ने बोला ये पेन मुझे 200 रुपए का चाहिए। तो शॉपकीपर से ठीक है ले लो 200 रुपए का, 300 रुपए का प्राइस था, 200 रुपए में तुम ले लो।
तो बायर को लगा नहीं यार, ये तो मुझे अभी भी महंगे में दे रहा है, मैं और ट्राई करता हूँ। नहीं नहीं, मैंने तो आपको 200 रुपये मुंह से निकल गया, 150 रुपये का पेन है, 150 रुपये ज्यादा इसकी कीमत नहीं है। सेलर सेट चल यार, मेरे पास तो स्टॉक में रखा है, 150 में दे देता हूँ। वो मान गया 150 में, ठीक है 150 में ले जाओ। देन बायर फेल्ट अगेन कि 150 में दे रहा है, मतलब इसको और ज्यादा मार्जिन कमा, इसमें बहुत सारा मार्जिन कमा रहा है ये, मुझे और नेगोशिएट करना चाहिए। ही सेड नहीं नहीं, मैंने तो आपको बहुत ज्यादा बोल दिया, मेक इट 120, 120 इज अ गुड प्राइस। ही सेड चल ओके यार, तू 120 में लेके जा, पीछा छोड़। फिर सेलर को लगता है 120 भी ज्यादा, इतनी आराम से मान गया तो ये अभी भी ज्यादा दे रहा है। कहते हैं मैं तो ना अपनी जेब में, मैंने अपनी टटोली, मेरी जेब में तो सिर्फ 70 रुपए है, 70 रुपए में आप देते हो? तो पहले तो बायर ने मना करा कि नहीं भैया, 300 रुपए का पेन मैं आपको 70 रुपए में कैसे दे सकता हूँ। आपने 120 बोला, फिर भी मैं मान गया, चलो मेरे पास स्टॉक में रखा है, आप ले जाओ। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास ना 70 रुपए ही हैं, आप 70 रुपए में देते हो तो बताओ, वरना मैं तो चला दूसरी शॉप से, मुझे नॉर्मल पेन मिल जाएगा। तो द सेलर सेड कि चल यार, झिकझिकबाजी क्या करनी है, 70 रुपए में देके खत्म करता हूँ। He gave that pen in 70 rupees to the buyer. What do you think happened here? Perhaps he may not buy. Pardon? Perhaps he may not buy. He bought it in 70. 70 में 70 में उसने ले लिया। लेकिन ये बायर और सेलर के बीच का कैसा रिलेशन बना? ये आगे के लिए कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, ट्रस्ट खत्म होगा। ट्रस्ट भी खत्म हो जाएगा, बायर भी, सेलर भी नहीं चाहेगा मेरे पास ऐसा बायर है, और बायर भी उसके पास दोबारा नहीं चाहेगा कि ये तो हर चीज में बहुत मार्जिन रखता है। ही लॉस्ट हिज ट्रस्ट कि अगर मुझे पार्कर का पेन इसने 300 से 70 में दे दिया, तो बाकी जो हल्की चीज होंगी उसमें तो पता नहीं क्या मार्जिन कमा रहा होगा ये। जैसे जनपद में हम जाते हैं, अगर आपने दिल्ली में जनपद जैसे मार्केट है, सरोजिनी नगर जैसे मार्केट सुनी होंगी अगर, जहां पर वो बोलते हैं 1000 रुपए का और देते हैं 100 रुपए में, तो वहां आपकी नेगोशिएशन के लिए सिर्फ काम करती है, वरना आप लुट कर भी आ सकते हो। तो दे आर नॉट बिल्डिंग ट्रस्ट, दे आर नॉट बिल्डिंग इक्विटी। व्हाट दे आर डूइंग दिस, वी इस प्रोसेस को हम सेल्स में बोलते हैं हेगलिंग एंड पेडलिंग। तो व्हेन यू आर डूइंग हेडलिंग एंड पेडलिंग विद द बायर, यू आर क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप ऑफ विक्टिम एंड सोर्स, कि एज अ सेलर आप विक्टिम बन गए, और जो बायर है वो सोर्स ढूंढ रहा है कि मैं और कितने लोगों को ऐसे बेवकूफ बनाऊं, या कितने लोगों को मैं मुर्गा बनाऊं। तो इन सेलर, you can't build equity with this headling peddling situation. So on the end side, write down headling peddling and victim and source relationship. There you're not building any relationship. अब एज अ सेल्स पीपल हम लोग बहुत तरह की कोर्सेज और ट्रेनिंग्स में जाते हैं, यस और नो? विनोद जी, यू आर इन सेल्स? यस मैम। आप भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन या ट्रेनिंग्स वगैरह में करते रहते होंगे, जाते रहते होंगे। जी। अच्छे से अच्छा सर्टिफिकेशन करके या अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग लेके क्या सेल्स हो सकती है? सेल्स तो पर्सनल एक्सपीरियंस करके ही होगी जी, जो मार्केट में हम एनकाउंटर करेंगे किसी चीज को। मानते हैं ना आप कि सिर्फ मैं अगर किसी से 10 तरह की मैनुअल्स भी ले लूं सेल्स की पढ़ने के लिए, और मैं पूरा एक फ्री में किसी का पूरा ज्ञान भी ले लूं, यूट्यूब पे तो भरा पड़ा है, अगर मैं कर भी लूं, तो जब तक सेल्स के लिए मैं एक्शन नहीं लूंगी, मैं काम नहीं कर सकती हूँ। तो दैट जी। इज वेन यू थिंक, अगर मैं आपसे बोलूंगी ना मैंने आईसीएफ कर रखा है, मैंने सेल्स के टॉप कोच से मैंने ट्रेनिंग ले रखी है, सब कुछ कर रखा है, लेकिन आप मेरा कोर्स ज्वाइन करने आते हो और मैं आपको इक्विटी नहीं दे पाऊंगी, ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पाऊंगी, आप ये नहीं देख पाओगे कि मेरे सिखाने से आपकी सेल्स में आप उसको यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसको रिजल्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आई विल नॉट बी एबल टू बिल्ड ट्रस्ट ऑन यू। सो इक्विटी बिल्ड करने के लिए सर्टिफिकेशन कोर्सेज वगैरह करने की जरूरत नहीं है। व्हाट वी नीड टू डू इज एक्सप्रेस योर सेल्फ एज ए एक्सपर्ट। आप वही मानते हैं कि जो काम आप कर रहे हैं, और जब आपके क्लाइंट आपके पास आते हैं, वो आप में ट्रस्ट कैसे देखेंगे? जब आप अपने आप को एज ए एक्सपर्ट उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिस प्रॉब्लम के साथ वो आपके पास आए हैं। डू यू अग्री विद दैट? व्हेन यू एक्सप्रेस एज ए एक्सपर्ट, you will be able to build trust. When your negotiation grounds are clear, rules are clear, कि ये मेरा लेवल है, इस लेवल के ऊपर आपको डिस्काउंट दे सकता हूं, इस लेवल के कई चीजें होती है ना, हम ओपनली ऑफर कर देते हैं, इफ यू बाय टुडे यू विल गेट दिस डिस्काउंट। अब क्या होता है, आपने एक गाइडलाइन सेट करा, आज लोगे तो इतना डिस्काउंट मिलेगा, कल आपके पास जा रहा है यार मैं कल ना बिजी था, तेरा डिस्काउंट चल रहा है, बैकडेट में तू बिलिंग करके दे सकता है, वो डिस्काउंट मुझे आज दे दे। और अगर आपने उसको यस कर दिया, तो डू यू थिंक आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा? नेक्स्ट टाइम वो ये सोचेगा कि 3-4 दिन बाद भी जाऊंगा ना, बैकडेट की बिलिंग पे करके वो मुझे डिस्काउंट दे देगा।
सो योर नेगोशिएशन रूल्स शुड बी वेरी क्लियर कि आज अगर मैं आपसे नेगोशिएट कर रहा हूं, जो गाइडलाइन मैं सेट कर रहा हूं, स्टिक टू इट, देन ओनली यू विल बी एबल टू बिल्ड योर ट्रस्ट. अगर आप उसको खुद ही चेंज करते हो तो यू आर लूजिंग ट्रस्ट फ्रॉम योर बायर. मेक सेंस? थर्ड इज हैंडलिंग वन इशू एट अ टाइम. बायर आपके पास आता है, वो कहता है मुझे गाड़ी खरीदनी है. गाड़ी खरीदते खरीदते कहता है तुझे पता है वॉशिंग मशीन कहाँ मिलती है अच्छी, मुझे नया सेलफोन भी लेना है, कहां से लूं, मैं सोच रहा हूँ गोवा का एक ट्रिप लगाया हूं, कौन से ट्रैवल एजेंट को पूछूं. नो, you have to be very strict. You can't answer all four. You have to share, sir, I'm expertise in this. Let's talk about this. Once this is clear, I'll help you out to connect with the right people. I'm not the right person for that. So you're not saying no to the customer. You're ready to help, but you're not shifting your focus from your product. Make sense? कि जो हम बेच रहे हैं अगर हम एक ही लाइन पे स्टिक रहते हैं तो हम अपना इक्विटी बिल्ड कर सकते हैं. तो टू बिल्ड द इक्विटी we must express as an expert, number one. Number two, clear ground rules for the negotiation. Number three, handling one issue at a time. Number four, create expert impact. As I said, कि अगर आप as an expert अपना impact create करते हैं, you will be able to build trust more on the buyer. And last, nurture relationships, not discounts, and not कहीं से हमें कुछ लेकर कस्टमर को फायदा नहीं कराना है. हमें कस्टमर से एक नर्चर रिलेशनशिप करना है. एज अजय सेड कि उन्होंने जब जॉब शुरू करा तो वो रेफरेंसेस के बेस पे भी आज आगे बढ़ रहा है. तो उन्होंने अपना एक रिलेशनशिप नर्चर करा है. मुकेश जी ने बताया उनके काफी 1000 लोग जानते हैं उनको, 300-400 क्लाइंट्स है जो उनके रेगुलर हैं. उसमें भी कुछ क्लाइंट्स ऐसे जरूर होंगे जो उनको रेफरेंसेस भी देते होंगे. दर्शन जी ने बताया कि ट्रस्ट अगर हम बिल्ड नहीं करते हैं, सर्विसेज नहीं देते हैं, तो कस्टमर हमारे पास नहीं आता है. तो ये सब कैसे होता है? वी हैव टू नर्चर द रिलेशनशिप. सो टू बिल्ड इक्विटी वी मस्ट express ourselves as expert. We must have clear ground rules for negotiation. We must handle our one issue at a time. Create expert impact, and last, nurture relationships. With all these 5, we can build a good equity with the buyer. Make sense? With this, we proceed to the last secret of today. That is, हमने ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, हमने अपनी बायर की नीश सुन लिया, उसको सुनकर उसकी नीश अंडरस्टैंड कर लिया, हमने कस्टमर ट्रस्ट बना लिया. अब बारी है पैसा निकलवाने की. That's what the sales is all about, closing the deal. How to create value with the customer. The third step is creating value. How to create value so that he comes and buys you from you. He trusts you कि मुझे अगर ये सामान खरीदना है या इस रिलेटेड सामान खरीदना है, this is the right person जहां जाके मैं आंखें बंद करके पैसा लगा सकता हूं. आप मानते हैं ये चीज? अगर एक बार आपने ईमानदारी से किसी को कुछ बेचा है, रेफरेंसेस हमारी कैसे आती है? रेफरेंसेस तब आती हैं जब कोई इंसान आंखें बंद करके हमें विश्वास करना सीखता है. आई होप यू ऑल विल अग्री. रुतुल, विनोद जी, सुनील जी, सुशील जी, यू ऑल विल अग्री कि अगर कोई पैसा हम पे लगाता है तो वो हम पे ट्रस्ट करता है, तभी वो हमारे पास आता है. सुशील जी, यू वुड लाइक टू शेयर समथिंग ऑन दिस? सुशील जी, आई थिंक आपने हाथ पे किया था. Yeah. Okay. So what you have said, Dipali, is absolutely right. The client will stay with you if he sees everything is transparent and you can be trusted. Then Then only he's he going will to be have ready deal to with pay you. you. Yeah, absolutely. That's so. थैंक यू सुशील जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग. सेल्स का एक रूल है, किसी की जेब से पैसा निकलवाना इतना आसान नहीं है. यू अग्री? किसी की जेब से, हमारी जेब से भी कोई सेल्स वाला आसानी से पैसे नहीं निकलवा सकता. उसके लिए इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है. नीश उसने हमारी समझ ली, उसने हमें इक्विटी ट्रस्ट पे बिल्ड कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, पैसा देने के लिए उसको अपनी एक वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा. फॉर दैट सबसे पहले तो वी मस्ट लर्न हाउ टू से नो. जैसे मैंने अभी आपको हैगलिंग बैगलिंग का बताया, अगर उसने, इफ यू वुड हैव लर्न दिस एक्टिविटी, लर्न दिस कला ऑफ सेइंग नो, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो नो बोल देता कस्टमर को, तो ट्रस्ट भी बिल्ड होता और कस्टमर उसको 150 रुपए भी देके जाता.
हेजिटेशन हमें दूर करनी पड़ेगी। वी आर वेरी हेजिटेंट, हम लोग सोचते हैं कि हमारे हाथ से कोई डील ना निकल जाए, जिस डिस्काउंट पे जा सकते हैं हम चले जाते हैं। सेकेंड, वी कीप थिंकिंग, हम सोचते ज्यादा है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, और मेरी डील क्लोज हो जाएगी। बट वी मिस ऑन टेकिंग द राइट एक्शन ऑन द राइट टाइम। कस्टमर को आज चाहिए और मैं 4 दिन तक बैठ के स्ट्रैटेजी बनाती रहूंगी, तो क्या कस्टमर मेरे लिए वेट करेगा? ही विल नेवर वेट। थर्ड, मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स हमें नहीं लगानी चाहिए कस्टमर के साथ। हमें उसे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि अगर आप ये प्रोडक्ट नहीं ले रहे हो तो ये ले लो, इसमें फायदा हो जाएगा। हमें ऑनेस्टली उसको राय जरूर दे सकते हैं। हर एक कस्टमर हमारे से क्रैक हो जरूरी नहीं है। सेल्स में तो कहा जाता है अगर आप 100 कोल्ड कॉलिंग्स कर रहे हो और एक भी आपके पास शुरू में आ रहा है तो यू आर अ सक्सेसफुल सेल्स पर्सन, बिकॉज यू आर लर्निंग फ्रॉम दोज 100 कॉल्स डिफरेंट थिंग्स। तो जब हम वैल्यू क्रिएट करते हैं किसी के साथ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड नॉट बी हेजिटेंट ऑफ सेइंग नो। हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, एक्शन ज्यादा लेना चाहिए, और एक म्यूचुअल कंसेंट बहुत जरूरी है। म्यूचुअल कंसेंट कैसे आता है? एज इट्स ऑलवेज सेड, रिजल्ट्स आर पेड नॉट एफर्ट्स। सेल्स के लोगों का टारगेट देखा जाता है, कितने नंबर्स वो लेकर आ रहे हैं, उनके एफर्ट्स नहीं देखे जाते वो क्या डाल रहे हैं। मानते हैं? यू अग्री? आपके रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके एफर्ट्स नहीं देखे जाते आप क्या डाल रहे हो। तो व्हेन यू टेक एक्शन, टेक इट स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले कस्टमर को आपने उसकी नीड समझा, फिर उसको आपने अंडरस्टैंड करा, अपने पास देखा उसको देने के लिए क्या है, अगर नहीं है तो उससे ऑनेस्टली आपने बिहेव करा कि सर ये चीज मेरे पास नहीं है, बट आई कैन हेल्प यू इन गेटिंग दैट। अगर आपको इस टाइप का कुछ चाहिए तो आप मेरे पास आइएगा, आपको जो नीश है, मैं आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं आपको कनेक्ट कर सकता हूँ टू द राइट पर्सन। तो एक हैंड होल्डिंग आपका कस्टमर पे होना चाहिए, तब आपके ऊपर वो ट्रस्ट बिल्ड होगा और वो आपको पैसा देने के लिए तैयार होगा। एंड whenever you go on any deal, I always say to all my mentees and sales people in my sales training, जब भी आप कोई डील करने जाते हो, आपने उनको पूरा डील समझा दिया, बिफोर यू लीव द प्लेस ऑलवेज समराइज योर मीटिंग विद द पर्सन। यू मस्ट समराइज कि पूरी मीटिंग के दौरान आपने क्या क्या उससे बात करी है, कि सर मैं आपके पास इस चीज के लिए आया था, हमने इस बारे में डिस्कस करा, मैंने आपको ये डील दिया और आपका ये स्टैंड आज के डेट में है। तो व्हेन टू फॉलो अप नेक्स्ट विद यू, और व्हेन डू आई कॉल यू नेक्स्ट। एक समरी से क्या होता है, क्योंकि जब अभी मैं भी 1 घंटे से आपसे बात कर रही हूँ ना, मैंने शुरू में क्या बोला होगा, हो सकता है आपका डिलीट हो गया हो, बट इफ आई विल समराइज अ बिट, यू विल रिकलेक्ट एवरीथिंग। तो समरी गिव्स अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द क्लाइंट एंड इट हेल्प्स इन क्लोजिंग द डील्स a lot. सो व्हेन यू से वैल्यू क्रिएशन में जो हमें काम नहीं करना चाहिए वो है हेजिटेशन पे काम करना चाहिए अपनी, कि वी शुड नॉट बी हेजिटेंट, we should not keep thinking a lot, take actions. Third, create, don't manipulate the buyer a lot. बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव टेक्टिक्स नहीं अपनानी चाहिए बायर के साथ। we must have we lack in mutual consent. हम अपनी थोपते रहते हैं, बायर अपनी बोलते रहते हैं, दोनों एक दूसरे का अपना अपना लाभ रापते रहेंगे तो कुछ सेल्स क्लोज नहीं होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवॉइड गिविंग चॉइसेस। जबरदस्ती का चॉइसेस हमें नहीं देना चाहिए, एक सजेशन देना चाहिए, वो भी जब अगर आपको लगे कि बायर इज रियली कंफ्यूज्ड, आपको सजेशन देना चाहिए। अपने प्रोडक्ट से ऊपर जबरदस्ती किसी और के प्रोडक्ट को लाइन अप नहीं करना चाहिए। एंड व्हाट यू मस्ट डू इज, रिजल्ट्स आर पेड नॉट एफर्ट्स। टेक एक्शन स्टेप बाय स्टेप। क्वालिटी एंड क्वांटिटी, इट्स अ आउटपुट बेंचमार्क। आप क्या क्वालिटी दे रहे हैं और क्या क्वांटिटी दे रहे हैं, वो अब मैंने ही बोल दिया। आप ये मानते हैं कि जो प्राइस मार्केट में अगर दिखाया जा रहा है, अगर वो डिस्काउंट पे दिया जा रहा है, तो उसकी वो जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगी मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे अगर आप देखते हैं कि अगर हम 1+1 फ्री होता है, अगर हम कुछ लेने जाते हैं ब्रांडेड का लेते हैं, तो चांसेस कम होते हैं कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज होगा। जो हमारी हल्की जो मीडियम लेवल के हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर 1+1 होते हैं, तो कई बार क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होते हैं, क्योंकि उनके पास ये बेचने के लिए तो लिमिटेड फनल ही है, उसमें वो अगर आपको ज्यादा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो वी मस्ट मेंटेन आवर क्वालिटी विद द क्वांटिटी। बायर को हम जितना ज्यादा देंगे उतना वो रिटेंशन होगा और हमें सेटिस्फेक्शन आएगा कि हमने उन्हें चीट नहीं करा है। वैल्यू फॉर मनी जरूर क्रिएट करना चाहिए। एंड देन इज समराइज आफ्टर योर प्रेजेंटेशन एंड इट्स अ प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल कंसेंट। You know what I feel?
मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम आपने देखा होगा जब बड़े बड़े हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं, बड़े बड़े किसी बड़े कॉर्पोरेट के पास कभी जाते हैं, तो हमें क्या लगता है कि अगर हम इनको डिस्काउंट्स नहीं देंगे डील्स पर, हम इन्हें पैकेज बना के नहीं देंगे, तो हमसे नहीं लेंगे। आपने किसी बड़े से किसी कोच का या किसी मास्टर क्लास कोई सेल्स पे करी है? आपने कभी कोई अटेंड करा है सेशन जहां पर एक जो सपोज सोनू शर्मा कोई भी ऐसे बड़ा कोच हो, या फिर बड़ा कोई हमारे कॉर्पोरेट के जो बड़े क्लाइंट्स होते हैं, दे कम इन द बिग कार्स, और वो एक हम पे इम्पैक्ट कर रहे थे, बड़ी बड़ी कारों में आते हैं, बड़े बड़े नाम बोलते हैं, बड़ी बड़ी जगहों के नाम लेते हैं, अपने पैसे का शो ऑफ करते हैं। तो वहां पर कई बार क्या होता है, हाउ यू फील, हाउ वी फील? यस रुतुल, वुड लाइक टू शेयर, कैसा लगता है तब? डू यू फील प्रेशराइज्ड? बिल्कुल ट्रू। तो प्रेशराइज फील करते हैं कि यार ये तो अगर मैंने इसको डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं दिया ना, मेरा डील नहीं लेने वाले हैं ये। सुनील जी, डू यू अग्री? जैस्मिन सेड हम में कमी है, बिल्कुल सही जैस्मिन। सुनील जी, व्हाट यू से ऑन दिस? जब हम देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा शो ऑफ करके हमारे पास आ रहा है, तो व्हाट वी फील? सुनील वुड लाइक टू शेयर। अनम्यूट योरसेल्फ। जब हम बहुत रोजी चीजों को देखते हैं ना, तो जनरली क्या होता है, वी फील हमें कहीं कमी है, वी फील स्मॉल। बट माय डियर फ्रेंड्स, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ऐसी कोई भी सिचुएशन आए ना, व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रोडक्ट, ऑलवेज फील आई एम इनफ। मेरे पास वो सब कुछ है। बायर अगर मेरे पास आया है, तो मुझसे वो किसी लेने के इंटेंशन से आया है, और अगर मेरे को अपने प्रोडक्ट में पूरा कॉन्फिडेंस है, तो मैं उसको उसी दाम पे दूंगा जिसको मैं हर एक के दाम, जिस दाम में मैं सबको दे रहा हूं। मैं प्रेशराइज फील नहीं करूंगा कि मैं कुछ गलत चीज नहीं दे रहा हूं उसको। मैं साथ में सर्विस देने को भी तैयार हूँ, रिलेशनशिप नर्चर करने को तैयार हूँ, ऑनेस्टी के साथ दे रहा हूँ, और मेरा इंटेंशन है कि जो वो चीज ले रहा है उसमें क्वालिटी पे मैंने कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, वेन एवर यू सेल, ऑलवेज फील आई एम इनफ इंस्टेड ऑफ फीलिंग आई एम नॉट इनफ। डू यू अग्री? सेल्स के लोगों में अगर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो हम बात करते हैं ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है यू मस्ट ऑलवेज फील आई एम इनफ। You should not feel I am not enough. You must feel I am enough. And from now onwards, whenever you have such a feeling ना, तो मेरी लाइन याद रखना, I am enough, I am giving right, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मेरे में कोई कमी नहीं है। I am a salesperson, first face of my company. Right? So always feel I am enough. It's not that I am not enough. So this is all about my today's workshop, wherein, yes, before I conclude, sorry, just a second. Yes, come back to this template को भी पूरा करना है. Just a second. Yes, come back to this template. जहां पर हमने लिखा है क्रिएट इम्पैक्ट, एक मिनट, जहां हमने लिखा है क्रिएट इम्पैक्ट, क्रिएट अवेयरनेस, सॉरी, यहां इसके ऊपर लिखिए अगर आप किसी कस्टमर की नीश समझते हैं, देन यू आर हेल्पिंग देम, देन योर अवेयरनेस इज सक्सेसफुल. राइट ऑन दिस नीश. अवेयरनेस क्रिएशन का मतलब है कि यू आर अंडरस्टैंडिंग देयर नीश एंड दे आर कमिंग टू यू फीलिंग यू विल अंडरस्टैंड देयर नीश. क्रिएट अवेयरनेस इज पॉसिबल अगर आप उनकी नीश समझ रहे हैं, तभी वो आपको समझ रहे हैं कि आप उस लाइन के एक्सपर्ट हैं और वो आपके पास आ रहे हैं. एंड हाउ यू बिल्ड ट्रस्ट? You build trust when you build your equity. You build trust on your buyer with the equity. Right? And when you create impact, when the buyer trusts you to pay you, there you create a value. When you are giving the right value to the customer, you are creating impact. जहां बायर आपके पास पैसे देने आ रहा है और आप उसके पास पैसे लेने जा रहे हैं, और दोनों का
you are closing a deal. Right? So this is all about the secrets. But tell me one thing. If you don't join my program or any program जहां पर आपको लगता है कि मुझे नॉलेज मिल सकता है, मैं ग्रो कर सकता है, एंड इवन देन इफ यू आर नॉट जॉइनिंग, आपकी लिमिटेशंस आपकी पॉसिबिलिटीज को ओवरटेक कर रही हैं, देन योर जर्नी विल बी समथिंग लाइक दिस, जहां पर कभी आपको लगेगा आप बेस्ट सेलिंग कर रहे हो, कहीं पर आपको लगेगा एकदम यू आर फीलिंग लो, एंड समटाइम्स यू आर फीलिंग हाई कि मैं तो करता हूँ. अप्स एंड डाउन्स विल बी वेरी मच इन योर जर्नी, right? But when you join any community, you have somebody to handhold with you. It becomes like this. Journey तब भी ऐसी रहती है जब आप पीक पर होते हो, you are motivated, you are getting motivation from the community. जब आप नीचे आते हो ना, आपका मेंटर आपको पुश करता है, धक्का मारता है कि तुम वापस ऊपर जाओ. This is the power of community. And a salesperson, I always say कि आप कभी भी ये मत सोचिए, you know, अब when the workshop comes towards the end, हमें लगता है कि अभी कुछ क्लोजिंग ऑफर आएगा, कि सारा मोमेंटम मैम ने बीच में क्रिएट कर दिया है, तो बिफोर शी विल गिव मी सम डिस्काउंट और समथिंग, यू नो, सम ऑफर ऑन द डील शी हैज शेयर्ड. But my dear friends, as I just said, there are few ground rules that we need to set. And I believe in my community, if you join, you will get 10 times of that. And I make sure you grow 10 times where you are. So this price is not negotiable. Generally हम लोग ये फील करते हैं, और जब भी हमें ग्रोथ चाहिए होता है ना, हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, अपने आप को लिमिटेशन माइंडसेट के साथ नहीं रखना चाहिए. डोंट फील कंटेंटेड, ऑलवेज टेक एक्शन. जितने जहां पर हो उसमें सेटिस्फाइड मत फील करिए, आगे बढ़ते रहिए. एंड जॉब माइंडसेट होता है जहां पर हमें कहा, जितना हमें दिया जाता है ना, उसमें खुश होते हैं. बी एंटरप्रेन्योर माइंडसेट. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वर्क ऑन 2 things. डोंट जस्ट वर्क विद द जॉब माइंडसेट, जहां पर जितना जॉब में क्या होता है ना, जितना काम दिया जाता है हमने करा, खत्म हो गया. एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, काम भी आपको खुद ही लाना है, बेचना भी आपको खुद ही है, और पैसा भी आपको कमाना है. तो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ अगर हम बढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे फेलियर्स हमें देखने को मिलते हैं, वो हमें बहुत पॉलिश कर देता है. और जॉब माइंडसेट हमें हमारी लिमिटेशन के साथ छोड़ देता है कि जितना मिल रहा है उतना काफी है. तो जस्ट डोंट स्टे विद द जॉब माइंडसेट, स्टे विद द एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट. एंड फाइनली, let me reveal. Any guesses? Let me reveal this end selling and case selling. What is end selling as per you? And what is case selling? Any guesses? Darshan ji, Sunil ji, Vinod, Ajay, Rutul. Don'ts. ये end selling which we have not to do, and case selling what? Nahi. Any somebody else? Ajay, you would like to try? हाँ मैम, जो जैसा फर्स्ट में बताया कि एन का जो डोंट, जो नहीं करने हैं, एन का मतलब क्या हुआ? नो. और के का? के का डू करने. के का तो डू नहीं हो सकता ना, वो डी का डू होगा. चलो, लेट मी टेल यू. बीइंग इंडियन, हम लोग थोड़े से अपनी हिंदी बॉलीवुड से भी इफेक्टेड होते हैं. तो बेस्ड ऑन दैट आई हैव केप्ट अ नेम. N means नाम का सेलिंग एंड K means काम का सेलिंग. ऐसे आप लोगों को हमेशा याद रहेगा कि हम नाम की सेलिंग कर रहे हैं, काम की सेलिंग कर रहे हैं. थोड़ा कई बार फिल्मी हो जाते हैं तो ज्यादा याद रहता है, गाने जल्दी याद हो जाते हैं ना. तो विद दिस आई कंप्लीट माय टुडेज वर्कशॉप. किसी को क्वेश्चन बताइएगा. आई एम राइटिंग माय फोन नंबर इन द चैट बॉक्स. किसी को इंडक्शन कॉल बुक करना हो तो यू कैन मैसेज मी एंड वी कैन हैव 15 minutes क्विक कॉल. I hope I was able to give you some information about selling today. और आपने जो समय मुझे दिया, I have not wasted. And I thank you, all of you, from bottom of my heart to join. And looking forward for your growth and your action now on yourself.
अपनी पॉसिबिलिटीज को हमने ऊंचा करना है, लिमिटेशंस को पीछे छोड़ना है, उसके बेसिस पे डिसाइड करिएगा कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है. I welcome you all to my Sales Suffer community and look forward to see you. Dipali, congratulations on Thank you, your ma'am. endeavor. I'm Thank very you, happy to see your Gurmeet ji, and progress. thank you for being here. I'm a little informal, but I thought I'll be with you and listen to what you say, how you progressed. I've seen you last 2-3 years now. Definitely you're doing well and have the right aptitude and skills to train people. Best of luck to you all. Thank you so much, Gurmeet ji. Looking forward to have developing my sales community with the same like-minded people. Thank you so much. So you can book your call today. I'm starting my batch from 27th June. 20th June, I will have an induction orientation meeting of the same. And let's connect on the call and start your journey now. Sky is the limit. Have a great day. Any questions you can ask me. I'm here for 5 minutes, or else we can wind up. Hi, Dipali. Hi, Jasmine. Please come on the camera if you can. नहीं यार, camera work नहीं कर रहा, that's why. Okay. I was told the workshop. It was really amazing. मजा आया सुन के. You are Thank you. really doing wonderful work. Thank you so much for inviting us. It's really amazing. All the best. Thank you. Looking forward to have you in my community. Sure. Thank you. Thank you, all of you. Have a great Sunday. Rock your journey and let's grow together. Bye-bye. Take good care of yourself. Thank you.